Good evening, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section. In BS Business Studies, we are in second chapter, Principles of Management. Before this, we read about Taylor's principle and fuel principle, and nature of principles. Every point were discussed in previous videos. This is the last point or last topic of this chapter. After made a deep discussion over fuel and Taylor's principle, now we have to find some distinction between views of fuel and Taylor. As we know that fuel versus Taylor, the topic heading is fuel versus Taylor. Here is a comparison or distinction between both principles of management. As we know that Henry Fayol's principle is administrative, mostly administrative principle towards organizational activities. Henry Fayol believed that if through a proper and efficient and effective administration, an organization can achieve their goals easily, smoothly, and effectively. On the other hand, F.W. Taylor, which principle is a scientific principle, which principle is known as scientific principle, they felt that an organization can only achieve their goals with a scientific approach within organization, scientific approach, scientific management and vision. An organization can achieve their goals. Now we have to be compare both principles on the various bases. There are 6 bases, so we're going to discuss. This is the very important question from the point of view of board examination. Most of time board examination this question were asked in any form. तो डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं. सबसे पहला है पर्सपेक्टिव. व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्यूल प्रिंसिपल्स. तो जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूल प्रिंसिपल इज बिकॉज फ्यूल प्रिंसिपल इज फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, दस फ्यूल प्रिंसिपल टॉप लेवल मैनेजमेंट. इसका पर्सपेक्टिव है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट इज होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन effectiveness. Thus, its perspective is top level management. Whether Taylor principle is scientific principle, so its vision is a scientific management of activities which is performed by subordinates at ground level. So the Taylor principle perspective is shop floor level of factory. फैक्ट्री के shop floor पर ग्राउंड और सबऑर्डिनेट्स लेवल पे जहाँ पे फोरमैनशिप है, वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करना है. तो देयर आर डिफरेंस बिटवीन perspective in Taylor's principle and fuel principles. Next is applicability, यानी ये कहाँ लागू होगा या ये कहाँ एप्लीकेबल है. तो हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन है, तो विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन वी कांट इमेजिन एनी ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज administration in all types of organization, and thus applicability, Henry Fayol's principle is universal applicable, and fuel principle is applicable to specialized situation. Fuel principle अगर फ्यूल का प्रिंसिपल हम बताएं कि अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां फ्लोर सोप लेवल वर्क नहीं होते हैं, एक्टिविटीज नहीं होते हैं, या फोरमैनशिप नहीं है, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा. तो फ्यूल का प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन लाइक फैक्ट्री सिचुएशन ओनली, एंड बट हेनरी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो फैक्ट्री हो या फिर हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, या किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, देयर शुड बी एन एडमिनिस्ट्रेशन. और इसलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल है, जबकि टेलर का एप्लीकेबिलिटी केवल फैक्ट्री वाले ऑर्गेनाइजेशन में है, क्योंकि वहां पर वो टेलर का जो प्रिंसिपल है वो ग्राउंड लेवल पे सबऑर्डिनेट्स, फोरमैनशिप और वर्कर के साइंटिफिक विजन के साथ उनका सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन और समायोजन की बात करता है, उनका साइंटिफिक अप्रोच है. तो इसलिए ये फैक्ट्री लेवल पे लागू है.
तीसरा है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इसका बेसिस क्या है फॉर्मेशन का, कैसे ये प्रिंसिपल डेवलप होते हैं, कैसे बनते हैं। तो फ्यूल के प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि फ्यूल का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जो है वो टाइम टू टाइम gradually they get developed with personal experience. Every managers felt some find some new ideas towards effective administration, and thus they personal experimented towards that principle, and thus they were given to that principle. तो basis of formation जो है फ्यूल का प्रिंसिपल को पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस आधार पर वो डेवलप होते हैं, जबकि टेलर का प्रिंसिपल जो है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फ्यूल के प्रिंसिपल चूंकि साइंटिफिक विजन है, इसलिए इसके जो प्रिंसिपल हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ ही वो डेवलप भी होते हैं और ग्राउंड लेवल फैक्ट्री लेवल पे उसको लागू भी किया जाता है। तो ऑब्जर्व जैसे टाइम स्टडी है, मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है, फैटिगी स्टडी है, तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन गोइंग टू बी अप्लाई। तो टेलर्स प्रिंसिपल were based upon the formation of scientific principle were based upon observation and experimentation. On the other hand, fuel principles formation were based upon personal experience. चौथा है फोकस। दोनों प्रिंसिपल कहाँ कहाँ फोकस करते हैं। अगर हम फ्यूल के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल की बात करें तो ये इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करता है। फ्यूल प्रिंसिपल का थीम ही है एडमिनिस्ट्रेटिव, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है, इसलिए उसका फोकस होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डेवलप किया जाए, इफेक्टिव किया जाए, एफिशिएंट किया जाए, और उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा हम टुवर्ड्स गोल अचीविंग, टारगेट अचीविंग हम उसको बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज स्टैंड फॉर अचीविंग गोल एंड टारगेट्स। तो फोकस ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूल प्रिंसिपल। जबकि टेलर के प्रिंसिपल का अगर फोकस होता है तो वो होता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। टेलर का प्रिंसिपल दोनों अपने अपने लक्ष्य पे ही पहुंचते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करके, इफेक्टिव करके, एफिशिएंट करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की बात सोचता है, और टेलर का प्रिंसिपल जिसका फोकस होता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, तो वो साइंटिफिक मैनर्स को लेकर, साइंटिफिक अप्रोच और विजन को लेकर के, और बहुत ज्यादा लोअर एंड फोरमैनशिप को कोऑर्डिनेट करके, उनको अकाउंटेबल बना करके वहां पर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी की बात करता है। लक्ष्य दोनों ही प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने अपने तरह से प्राप्त करते हैं। फ्यूल का प्रिंसिपल जहां एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर देता है, वहीं टेलर का प्रिंसिपल साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक विजन पर जोर देकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की बात करता है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अगर स्टेटस की बात करें तो हेनरी फ्यूल फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है, क्योंकि हेनरी फ्यूल का जो मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, और हमने बताया है कि इन होल वर्ल्ड देयर वर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, और डिफरेंट वर्क्स टाइप्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो whether there is organization, a group of people work, there must be a need of administration, and whether there is a administration, there Henry Fayol principles were applied. Thus हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल का स्टेटस ये है कि इट इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। वेदर टेलर के प्रिंसिपल टेलर का प्रिंसिपल चूंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट है, एंड इट्स अप्लाइड ओनली स्पेशलाइज्ड सिचुएशन लाइक फैक्ट्री बेस्ड सिचुएशन, तो इट इज नोन एज, इसका स्टेटस जो है वो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेयर देयर इज नीड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच एंड फोरमैनशिप एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहां पर इसको लागू होगा। देयर इज टू डिफरेंट स्टेटस ऑफ बोथ प्रिंसिपल, वेदर फ्यूल प्रिंसिपल्स स्टेटस इज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, at the on the other hand the Taylor's principal status is father of scientific management. अगर हम बात करें पर्सनैलिटी की, द मैनेजर्स जो पर्सनैलिटी इसमें डेवलप होते हैं, तो फ्यूल का प्रिंसिपल चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो इसलिए इसके जो मैनेजर होंगे दे ऑलवेज एंगेज इन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑलवेज फाइंड न्यू वेज for a proper and effective administration. Thus, the persons under fuel principle or managers under fuel principles were called practitioner. जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर प्रैक्टिशनर होता है, वकील प्रैक्टिशनर होता है, तो
अंडर फ्यूल प्रिंसिपल दे वर डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्चुअली, एंड जो टेलर के प्रिंसिपल है तो उसमें साइंटिफिक अप्रोच और डिफरेंट साइंटिफिक रिलेशंस की हम जांच करते हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी को हम फाइंड करते हैं, फाइंड अप्रोप्रिएट वे, फाइंड सुटेबल वे टू अचीव दैट गोल। तो इसलिए एक खोज हमेशा रहती है, एक न्यू साइंटिफिक अप्रोच और न्यू साइंटिफिक वे की हम तलाश में रहते हैं अंडर टेलर्स प्रिंसिपल। इसलिए इसका जो पर्सनैलिटी डेवलप होता है, इसमें जो मैनेजर्स होते हैं दे वर कॉल्ड they were develop a personality of scientist. So that is the difference of personality. Under Froel principle, the personality will develop as a practitioner, and in a Taylor principle, the personality develop in form of scientist. Thus, students, these are six bases on which we can distinguish Taylor and Froels, and that is very easy to understand because if we well know the principles of both Taylor and Froel, then we can easily remember it, and also can we understand this distinction between Henry and Froel. Thus, in that way, the chapter were going to be finished today, and the homework, as we know that you are a higher class, so I'm not going to say that आपको क्वेश्चन आंसर बना के हमको देना है, बट जब स्कूल खुलेगा तो आपको सभी को इसका फुल्ली नोट्स लाना है। हमने होमवर्क दिया है, मेक होल नोट्स ऑफ दिस चैप्टर पॉइंट वाइज एंड विद क्वेश्चन आंसर। तो जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं और जितना भी इस चैप्टर में पॉइंट, जिस तरह से हमने पॉइंट वाइज आपको वीडियो भेजे हैं, उस तरह से आप इसका पूरा नोट्स बना लेंगे, एंड काइंडली कीप विथ योरसेल्फ, एंड व्हेन एवर स्कूल will get open, you must bring that fair copy for checking. Thank you. Till then, bye.